Today we are going to do increase or decrease in prices, finding the percentage. जब किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो वो रुपीस में बढ़ती है, बट उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं और वो आज सीखेंगे. और कभी कभी प्राइस घटती है तो कितना घटा, कितना परसेंटेज डिस्काउंट मिला, वो भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा. Look at the your homework is to write all the video sums with me plus solve the worksheet. So we are going to do 9 sums for topic F. So you have to write F and then write video examples. तो मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो वाले सम्स हैं. F video examples. You don't need to copy the question. बट रिमेंबर इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक. हो सके तो मम्मी पापा या बड़े भाई बहन के साथ देखना. दे विल बी डेफिनेटली एबल टू हेल्प यू, बट डोंट डू इट अलोन अनलेस यू आर ब्रिलियंट. तुम्हारा मैथ्स में 90% स्कोर आता है तो ठीक है, बट इफ यू आर स्कोरिंग लेस देन दैट, सिट विथ योर पेरेंट, लर्न दिस टॉपिक, बिकॉज इसमें हर एक क्वेश्चन में हेल्प चाहिए. शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बनाना पर डजन वॉज 40 रुपीज बट इज सोल्ड एट 60 रुपीज. पहले का प्राइस 40 था, नया प्राइस 60 है, तो कितना परसेंट प्राइस इंक्रीज हुआ. To solve this sum, start writing old price of banana per dozen. Old price of banana per dozen is equal to 40 rupees. New price of banana per dozen is 60 rupees. फर्स्ट फाइंड आउट कि कितना रुपीस प्राइस बढ़ाया है. देयरफॉर इंक्रीज इन प्राइस, हाउ मच हैज द प्राइस बीन इंक्रीज्ड. इंक्रीज इन प्राइस इज इक्वल टू 40 का 60 हो गया तो 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20 रुपीज. 20 रुपीज भाव बढ़ गया. एंड नाउ द मेन क्वेश्चन इज फाइंड परसेंटेज इंक्रीज. परसेंटेज increase in price is equal to increased price, કેટલા રૂપિયા વધાર્યા था, 20 रुपया, अपॉन ओल्ड प्राइस, पहले कितना प्राइस था 40 रुपीज, इंटू 100. ये एक टाइप का फॉर्मूला है. अमाउंट इंक्रीज्ड 20, ओल्ड प्राइस 40 इंटू 100. Calculate yourself in the notebook, you will find that the answer is 50%. That's your final answer. 50% increase हो गए prices. Question number 2. What is the increase in percentage in the price of mobile if the price of 8,000 is now sold at 16,000. 8,000 का मोबाइल 16,000 में है. हाउ मच इज द इंक्रीज. स्टार्ट राइटिंग. ओल्ड प्राइस ऑफ मोबाइल इज इक्वल टू 8,000 रुपीज. New price of mobile is equal to 16,000 rupees. कितना प्राइस बढ़ा. इंक्रीज इन प्राइस इज 16,000 माइनस 8,000, 8,000 rupees, and percentage increase is equal to increased price
upon old price into 100. Increased price upon old price into 100. Increased price 8,000, old price 16,000. Old price 8,000 into 100. Answer is 100% increase in price. You may pause the video if your writing speed is slow, but you have to write all the sums in this particular format, video sums also and homework sums also. Third sum, the initial price of petrol is 65 rupees in December. Old price in December is equal to 65 rupees. The prices are going to become 81.25. न्यू प्राइस जो फ्यूचर में होने वाली है इज 81.25 रुपीज. फाइंड परसेंटेज इंक्रीज. पहले इंक्रीज अमाउंट फाइंड करो, कितना रुपया बढ़ गया. इंक्रीज अमाउंट इज 81.25 minus 65. I don't need to tell you how to subtract, but remember डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए और 65 के पीछे 2 zeros लगेंगे. ₹16.25 has been increased. Therefore, percentage increase is equal to increased amount upon old price into 100. This formula we are doing it for the third time. I hope you will remember it now. 16.25 upon 65 into 100. Because these calculations are tough, I am going to show you every single step of this calculation. But pause the video and try to do it yourself first. पहले खुद करने की कोशिश करो, फिर आगे देखना. The two decimals become 2 zeros and the denominator. 16.25 मतलब 1625 upon 100 और ये into 100 है, 100 cut. So we are left with 1625 upon 65. Cancel with 5. 5 3s are 15, 5 2s are 10, 325. And cancel 65 with 5, 13. And 325 upon 13 properly करना पड़ेगा. 13 2s are 26. 13 5s are 65. 0. Final answer, 25% increase in price has happened for petrol. That's the sum. Old price, new price, increased amount, percentage increase. सारे के सारे sums 4 step के हैं. Let's do sum number 4. How much percentage should the shopkeeper hike the price of bread if he wants the price to become 60 rupees from 50 rupees? English language समझने की कोशिश करो. How much percentage should the shopkeeper hike the price? Hike मतलब price बढ़ाना. तो क्वेश्चन अभी भी वही है, increased percentage. किसका? ब्रेड का. If he wants the price to become 60 from 50 and 60 from 50 में can you guess पुराना प्राइस क्या है? Old price of bread is 50 rupees. New price the shopkeeper wants of bread is 60 rupees.
वी हैव टू फाइंड आउट कि कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा. फर्स्ट फाइंड इंक्रीज्ड अमाउंट. 60 minus 50, 10 rupees. And then find out percentage increase is increased amount upon old price into 100. Increased amount 10 rupees, old price 50 rupees into 100, 20% is the answer. Fifth sum. If the price of milk rises to 45 rupees from 30 rupees, दूध का प्राइस 45 बन गया, पहले था 30, हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज. तुम्हें पूरा डिटेल में लिखना है. डोंट यूज शॉर्टकट्स. आई कैन यूज इट, यू डोंट. ओल्ड प्राइस 30, न्यू प्राइस 45, इंक्रीज्ड अमाउंट 45 minus 30, 15 rupees. परसेंटेज इंक्रीज खुद फाइंड करो. पॉज द वीडियो, राइट एवरीथिंग इन डिटेल. ओल्ड प्राइस ऑफ मिल्क, न्यू प्राइस ऑफ मिल्क, इंक्रीज्ड अमाउंट इन द प्राइस ऑफ मिल्क एंड परसेंटेज इंक्रीज is increased amount upon old price into 100. Increased amount 15, old price 30 into 100, answer 50%. Sixth sum. The price of the shirt is reduced from 40 to 10. How much discount is given? अब पहली बार प्राइस कम हो रही है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यू स्टिल राइट ओल्ड प्राइस ऑफ शर्ट. प्राइस ऑफ शर्ट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 40 टू 10. मतलब पहले 40 था, अब 10 हो गया है. दैट्स वाई यू विल नीड ब्रदर और सिस्टर टू एक्सप्लेन एवरी सम. शायद खुद समझ में ना आए कि ओल्ड प्राइस और नया प्राइस कौन सा है. सो ओल्ड प्राइस इज 40 रुपीज, घट के न्यू प्राइस ऑफ शर्ट इज 10 रुपीज. देयरफॉर डिक्रीज्ड अमाउंट कितना है, कितना अमाउंट प्राइस घट गया. 40 minus 10, 30 रुपीज कम हो गया प्राइस. एंड देयरफॉर परसेंटेज डिक्रीज इज हाउ मच. द फॉर्मूला रिमेन्स सेम. डिक्रीज्ड अमाउंट अपॉन ओल्ड प्राइस into 100. Decreased amount 30, old price 40 into 100. 75% प्राइस कम कर दिया, मतलब 75% डिस्काउंट मिला. लर्न टू यूज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन में डिस्काउंट पूछा है तो हम भी डिस्काउंट लिखेंगे. Seventh sum. Find the percentage reduction in prices if the prices have come down to 34 from 60. किसका प्राइस किसने बढ़ाया किसने घटाया, कुछ नहीं. इट्स अ सिंपल सम. ओल्ड प्राइस 60, न्यू प्राइस 34, रिड्यूस्ड डिक्रीज्ड अमाउंट. कितना रुपया डिक्रीज हुआ. डिक्रीज्ड अमाउंट 60 minus 34, 26 rupees. Therefore, percentage decrease is decreased amount upon old price into 100. Try to solve it yourself by pausing the video and then check whether you got the answer or not. 26 upon 60 into 100. Try. I am solving it. 0 0 cut. 260 upon 6. 2 से कट करो. 130 upon 3. 3 4s are 12.
43.33%। और ये डिवीजन अगर तुम्हें डायरेक्ट नहीं आता है तो प्लीज डू दिस इन योर रफ वर्क। 3 4 ज़ा 12, 1 0 आ गया, 3 3 ज़ा 9, carry 1, when you put an extra 0 there is a dot, 3 3 ज़ा 9, 1 0, 3 3 ज़ा 9। दो डेसिमल तक आंसर लाना है। फाइनल आंसर इज 43.33% रिडक्शन इन प्राइसेस। सम नंबर 8, a table is marked 15,000 rupees and the sale price is 13,500। प्राइस छापा है 15,000 but shopkeeper is ready to sell in 13,500। find percentage discount। old price of table 15,000 rupees but new price जिसमें शॉपकीपर बेचने को तैयार है is 13,500। therefore decrease in price या decrease amount कितना है? 15,000 minus 13,500, 1,500 rupees, रुपीस भी लिखो। एंड देयरफॉर परसेंटेज डिक्रीज मतलब डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट reduced या decreased amount upon old price into 100। pause the video, calculate yourself, you will find the answer easily 10%। last sum, price of the book is reduced from 45 to 36। old price 45, new price 36, decrease in price या decreased amount 9 rupees। percentage decrease is decreased amount upon old price into 100। answer is 20% discount। that's the end of topic F। you have written 9 sums, then you will do the homework। मेरी मानो तो एक टॉपिक सीखने के बाद उसका होमवर्क खत्म कर दो, फिर वापस वीडियो चालू करना। सो यू कैन एग्जिट द वीडियो नाउ, ओपन द वर्कशीट एंड फिनिश क्वेश्चन F, which is increase decrease in prices, which you have to convert to percentage। once you have finished the homework, go ahead and do topic E, A B C D E F G, sorry, topic G। increase decrease percentage, find the prices। ये एग्जैक्ट उल्टा है कि परसेंटेज बढ़ाया परसेंटेज घटाया तो नया प्राइस क्या है। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स नाउ। टॉपिक G, there is increase or decrease percentage given, you have to find the prices। price of pencil is 15 rupees। आज की तारीख में पेंसिल का प्राइस 15 rupees है, which increases by 20% in December। 20% प्राइस बढ़ गया। what is the new price? इसमें भी 4 सेंटेंस होंगे। old price of pencil 15 rupees। percentage increase 20%। जी हाँ, सीक्वेंस चेंज हो गई क्योंकि टॉपिक चेंज हो गया है। ओल्ड प्राइस 15 रुपीज, परसेंटेज इंक्रीज 20 रुपीज, तो इंक्रीज्ड अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। इंक्रीज्ड अमाउंट इज 20% ऑफ 15 रुपीज। 15 रुपए था, उसमें 20% बढ़ाना है तो पहले 20% फाइंड करो। एंड 20% ऑफ 15 वी लर्न लास्ट टाइम 20 अपॉन 100 इंटू 15। आंसर विल बी 3 रुपीज।
और इंक्रीज्ड अमाउंट 3 रुपीज है, तो न्यू प्राइस कितना? न्यू प्राइस इज ओल्ड प्राइस प्लस इंक्रीज्ड अमाउंट, मीन्स 15 रुपीज प्लस 3 रुपीज। दिसंबर का प्राइसेस आर गोइंग टू बी 18 रुपीज, क्योंकि 20% भाव बढ़ गया। सम नंबर 2 लिखो। प्राइस ऑफ पेट्रोल इज 85 रुपीज। ओल्ड प्राइस ऑफ पेट्रोल 85 rupees per liter, which increases by 5%. Increased percentage 5%. What is the increased price? Increased price के लिए पहले increased amount find करना पड़ेगा, and increased amount is 5% of 85. 5% भाव बढ़ गया, तो 5% ऑफ 85 कैलकुलेटेड लाइक दिस, 5 upon 100 into 85. 5 ones are 5, 5 20s are 100, 5 19s are 85, 5 4s are 20, and 19 upon 4 is 4 4s are 16, 30, 4.75 rupees. I'm again and again telling you, 19 by 4 अगर खुद से नहीं करना आता है डायरेक्ट, तो do this. Nobody will teach you this in 8th standard. 4 4s are 16, 3 30 dot 4 7s are 28, 2 20, 4 5s are 20, remainder 0, डिवीजन ओवर। 4.75 भाव बढ़ गया पेट्रोल में। तो पहले था 85, उसमें 5% बढ़ा, मतलब 4.75 रुपीज बढ़ गया। न्यू प्राइस इज ओल्ड प्राइस प्लस इंक्रीज्ड अमाउंट इज 85 प्लस 4.75 rupees. Final answer 89.75 rupees is the new price, increased price of the petrol. Example number 3. Write down. A car costs 1,50,000 in January. Old price of car in Jan. जितना हो सके उतना अच्छा इंफॉर्मेशन लिखने का। 1,50,000 rupees. In March, there is a hike of 8%. Increased percentage 8%. What is the price of same car in March? तो पहले increased amount find करना पड़ेगा। And increased amount find करने का स्टाइल है 8% of 1,50,000 rupees, meaning 8 upon 100 into 1,50,000. 0 0 0 0 cut. 8 into 15, 120, followed by 2 zeros, मतलब 12,000 rupees प्राइस बढ़ जाने वाला है। Therefore, new price in March of a car is old price plus the increased amount. 1.5 लाख ऑलरेडी भाव था, 8% बढ़ गया, मतलब 12,000 बढ़ गया। Therefore, the new price is 1,62,000 rupees. Final answer. This is very day to day stuff. इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मम्मी पापा या बड़े भाई बहन को आराम से समझ में आएगा। इट इज जनरल नॉलेज। टेक देयर हेल्प इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि नहीं आता है और डिफिकल्ट है, और टेक माई हेल्प एंड आस्क मी, आई विल हेल्प यू। फोर्थ सम, हेयर डाई फॉर्मूला ₹55. व्हाट विल बी द न्यू प्राइस इफ देयर इज एन एक्स्ट्रा चार्ज ऑफ 10% ऑन इट? 55 रुपए के हेयर डाई पे एक्स्ट्रा 10% चार्ज लगाया है, तो नया प्राइस क्या होगा?
old price 55, percentage increase 10%, increased amount is 10% of 55, which is 10 upon 100 into 55, which is 5.5 rupees. 5 रुपए 50 पैसे बढ़ गया, तो न्यू प्राइस इज ओल्ड प्राइस प्लस इंक्रीज्ड अमाउंट 60.50 रुपीज में अब हेयर डाई बिकेगा. सो सिंपल. ओल्ड प्राइस ऑफ डबल बेड इज 12,000. पूरा लिखना है तुम्हें, मैं कम लिख रहा हूं. ओल्ड प्राइस ऑफ डबल बेड इज 12,000. What will be the new price if there is an increment? Increment मतलब વધારો of 33% on the price of bed. Increased percentage 33%. Pause the video and calculate yourself. I am very serious. If you don't pause the video and try to do it yourself, you will find this chapter really difficult. So pause the video and calculate yourself how much amount has increased. 33% of 12,000. 0 0 cut. 33 into 120. So 33 into 12. 3960 rupees. So increase is 3960 rupees. Therefore new price is old price plus the increased amount 12,000 plus 3960 rupees. 15,960 rupees is the new price of whatever product it is. Sixth sum. There is a reduction in price of laptop by 15% on the price of 35,000. Old price of laptop 35,000. इस बार प्राइस घट रही है, सो डिक्रीज्ड परसेंटेज 15%. तो पहले डिक्रीज्ड अमाउंट फाइंड करते हैं. 15% मतलब 15 रुपया नहीं, 15% डिस्काउंट मतलब 15% of 35,000, which is 15 upon 100 into 35,000. 0 0 cut. 15 into 350. ₹5250 रुपीस डिस्काउंट मिला है. एंड 5250 रुपीस डिस्काउंट 35,000 पे मिला है. देयरफॉर न्यू प्राइस इज ओल्ड प्राइस माइनस डिक्रीज्ड अमाउंट. डिक्रीज का मतलब ही ये होता है कि तुम्हें कम करना है, इसलिए यहां पे माइनस आएगा. 35,000 माइनस 5250 is 19,750 rupees. नहीं, 29,750 rupees. That's the final answer. Seventh sum. Find the reduced price of Apple if the price has fallen from 50 to a discount of 40%. Old price of Apple 50 rupees. परसेंटेज डिक्रीज मतलब डिस्काउंट 40%. देयरफॉर डिक्रीज्ड अमाउंट कि कितना रुपया कम होगा 40% ऑफ 50 रुपीज. 50 रुपए का पुराना प्राइस है, उस पर 40% डिस्काउंट. 40% ऑफ 50 इज 40 अपॉन 100 इंटू 50. 0 0 0 0 कट. 20 रुपीज डिस्काउंट. Therefore new price
₹50 का था, ₹20 कम कर दिया, नया प्राइस ₹30। 8th sum, price of the scooter is 50,000 and there is a reduction in price by 22%. Old price of scooter 50,000 rupees. Decreased percentage 22% प्राइस कम हो गया, तो डिक्रीज्ड अमाउंट फाइंड करने के लिए 22% ऑफ 50,000 मतलब 22/100 into 50,000, 0 0 0 0 कट, 22 into 500, 11,000 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। देयरफॉर न्यू प्राइसेस 50,000 प्राइस था, उसमें 11,000 कम हो गया, 39,000 इज द आंसर। सो एवरी सम ऑफ टुडे इज 3 स्टेप। 9 सम तुम खुद करो। Pause the video and solve this sum. How much money must be reduced in the original price of 32,000 rupees so that reduction can be considered as 12%? Pause the video, do it yourself, you will be shocked. There is a surprise, but first try to solve this sum, जिसको मैं थोड़ा सा neat और clean दिखा रहा हूं। इंग्लिश लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है वो यहां से पता चलेगा। पॉज एंड सॉल्व दिस सम नाउ। I will solve this. How much money must be reduced in original price? Original price मतलब old price. Old price of TV 32,000. Percentage decrease 12%. Decreased amount is 12% of 32,000 is 12/100 into 32,000. 0 0 cut, 32 into 12, 3840 rupees. If you have stopped here, then you are right. अगर तुमने न्यू प्राइस कैलकुलेट किया है, then you are wrong. New price is 32,000 minus 3840. 28,160. नहीं, 28,160. Then this is a wrong answer. Reason is they have not asked the new price. Learn English. How much money must be reduced? कितना पैसा कम करे कि 12% डिस्काउंट मिलेगा. Therefore, money to be reduced is 3840. This is the final answer. That was the googly in this sum. Anyways, that's all for today. You have to solve topic F and G sums and email by today night, latest by tomorrow night. Thank you. I am continuing for one more topic today because it's a very long chapter. तो कम कम करने से ख़त्म नहीं होगा. So topic H. So A, B, C, D, E, F, G. Today we did F and G and H will do find selling price. You have to think like a businessman. बिजनेस कैसे होता है? तुम एक जन से कुछ खरीदते हो, उस पे प्रॉफिट चढ़ा के दूसरे को बेच देते हो. हेमंत bought a fan. Bought मतलब purchased for rupees 5,800 and made 1,200 rupees expenses on it. हेमंत ने 5,800 का पंखा खरीदा और उस पे 1,200 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा किया. तो जेब में से कितने गए? You have to write
हेमंत bought BOUGHT fan at rupees 5800. एक्स्ट्रा एक्सपेंस, पंखे के ऊपर रिपेयरिंग किया उसने, रिवाइंडिंग, मोटर, फैन, कलर, कुछ भी किया होगा, रुपीज 1200. तो उसके जेब से कितना गया इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस. કેટલામાં પડ્યું? અરે વાહ, નવો મોબાઈલ કેટલામાં પડ્યો? તો મોબાઈલ 4000 નું, કવર 200 નું, સ્ક્રીન ગાર્ડ 100 નું. वैसे अरे वाह, नया फैन कितने में पड़ा? 5800 प्लस 1200, 7000 रुपीज में पड़ा. अब उसको ये फैन बेचना है, ही विशेस टू सेल एट अ प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट करना है 10%. व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस? तो 7000 के पंखे को 10% प्रॉफिट, सो यू राइट प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 10%, profit amount is equal to 10% of 7000 rupees. Profit amount is, इसका फॉर्मूला लिखो, एक्चुअली कट करो और लिखो, प्रॉफिट अमाउंट इज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, मतलब 10% ऑफ 7000, मतलब 10/100 ऑफ 7000, मतलब 700 रुपीज. 10% प्रॉफिट करना है तो 700 रुपया ऐड करना पड़ेगा. Therefore, selling price is cost price plus profit amount. कॉस्ट प्राइस 7000 रुपया, प्रॉफिट अमाउंट 700 रुपया. 7700 रुपीज में अगर वो बेचेगा तो उसको 10% प्रॉफिट होगा. दैट्स द सम. इट्स अ वेरी रियल लाइफ सिनेरियो. सो टेक हेल्प ऑफ योर एल्डर ब्रदर, सिस्टर और मदर, फादर. दे विल 100% अंडरस्टैंड द सम. ये सम्स डे टू डे लाइफ के हैं जो सबको पता होते हैं. एक बार फिर से बता रहा हूं, हेमंत बॉट द फैन फॉर 5800, उस पे 1200 का खर्चा किया, सो कॉस्ट प्राइस इज 7000. दिस इज द फॉर्मूला. प्रॉफिट अमाउंट इज परसेंटेज ऑफ सीपी, मतलब 10% ऑफ सीपी, मतलब 10% ऑफ 7000. और ये दूसरा फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट अमाउंट. प्लीज राइट दिस टू फॉर्मूलाज इन अ कॉर्नर एंड रिमेंबर इट फॉर एवर. Sum number 2. Rajesh's car which he purchased for 4,50,000 and spent around 50,000 rupees repair, he wants to sell at a profit of 2%. Price of car 4,50,000 रुपीज. रिपेयर कॉस्ट, उस पर एक्स्ट्रा खर्चा किया 50,000 रुपीज, कलर, बोनेट, इंजन वगैरह वगैरह. देयरफॉर कॉस्ट प्राइस कितना? राजेश को कार पड़ी 5 लाख में. यू हैव टू ऐड दिस टू. 4.5 ની ગાડી 50,000 નો ખર્ચો 5 લાખમાં પડી, उसको 2% प्रॉफिट करना है. So profit percentage is 2%. तो प्रॉफिट अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. प्रॉफिट अमाउंट मीन्स परसेंटेज ऑफ सीपी, मतलब 2% ऑफ सीपी, मतलब 2% ऑफ 5 lakhs, मतलब 2/100 इंटू 5 lakhs. आंसर है 10,000 रुपीज.
और प्रॉफिट अमाउंट 10,000 रुपीज है, therefore the selling price should be how much? Selling price is cost price plus profit amount. मतलब 5 लाख प्लस 10,000. He should sell the car in 5,10,000 rupees amount to have a percentage profit of 2%. Third sum. Rakesh bought a TV for 3,400 and made 1,600 circuit repair expense. Rakesh bought TV is equal to 3,400 rupees. रिपेयर एक्सपेंस उस पर थोड़ा खर्चा किया 1,600 रुपीज. देयरफॉर उसको टीवी कितने में पड़ा? कॉस्ट प्राइस 5,000 रुपीज. ही शुड सेल द टीवी एट हाउ मच प्राइस टू गेट अ बेनिफिट ऑफ 25%. बेनिफिट मतलब प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट चाहिए? प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%. उसका अमाउंट काइंड फाइंड करो. प्रॉफिट अमाउंट इज फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ सीपी means 25% of CP means 25% of 5,000 means 25 upon 100 into 5,000. 1,250 rupees. And therefore the final answer, selling price, Rakesh should sell the TV at कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट अमाउंट मतलब 5,000 प्लस 1,250. उसको 6,250 में टीवी बेचना चाहिए सो दैट उसको 25% प्रॉफिट मिले. फोर्थ सम. रिया इज अनेबल टू सेल द बल्ब विच शी बॉट एट 150 फॉर प्रॉफिट. रिया प्रॉफिट करने के पोजीशन में नहीं है. किस पे? बल्ब पे. कितने का बल्ब? 150 रुपए का. सो इसमें एक्स्ट्रा खर्चा कुछ नहीं है. सो डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस ऑफ बल्ब. बल्ब रिया को कितने में पड़ा? 150 रुपीज में. अब प्रॉफिट हो नहीं रहा है, हेंस शी वांट्स टू सेल इट एट अ लॉस ऑफ 30%. लॉस परसेंटेज 30%. 30% नुकसान. तो पहले लॉस परसेंटेज का लॉस अमाउंट फाइंड करो. प्रॉफिट अमाउंट की जगह लॉस अमाउंट इज फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. फॉर्मूला डजंट चेंज. परसेंटेज ऑफ सीपी. सो लॉस अमाउंट इज परसेंटेज ऑफ सीपी मतलब 30% ऑफ सीपी मतलब 30% ऑफ 150 मतलब 30 अपॉन 100 इंटू 150. 45 रुपीज नुकसान करना पड़ेगा. तो फाइनली सेलिंग प्राइस इज हाउ मच? सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. हाँ, ये फॉर्मूला चेंज हो गया. सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. 150 का बल्ब था, उसमें 45 का नुकसान करने के बाद 105 में रिया बेच सकती है. Therefore, there are two new formulas. Loss amount is percentage of CP. This looks very much like profit amount, but this formula has changed. SP is CP minus loss. प्रॉफिट करना है तो प्लस प्रॉफिट, लॉस है तो माइनस लॉस. 105 रुपया वुड बी द सेलिंग प्राइस इफ शी वॉन्ट्स टू सेल इट एट अ लॉस ऑफ 30%. What will be the selling price of computer mouse purchased at 850 rupees? माउस खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस
850 rupees and sold for a loss of 25%. Percentage loss 25%. Therefore परसेंटेज लॉस का लॉस अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा एंड लॉस अमाउंट फॉर्मूला इज परसेंटेज ऑफ सीपी means 25% of CP means 25% of 850 means 25 upon 100 into 850 is equal to 212 रुपया 50 पैसा. इतना नुकसान करना पड़ेगा. And therefore the final answer, selling price is equal to cost price minus loss. 850 का माउस था, 25% कम में बेचना है तो 212.5 माइनस कर देना पड़ेगा. ₹637.5 is the answer. One has to sell the mouse at this much amount. तो 25% लॉस में बेचा गिना जाएगा. Jayesh wants to sell his old TV at 30% less price. 30% less मतलब 30% discount मतलब 30% loss as compared to purchase price of 12,000 rupees. जयेश का कॉस्ट प्राइस 12,000 रुपया है, उसको 30% लेस में खरीदना है, मतलब परसेंटेज लॉस या परसेंटेज डिस्काउंट जो बोलो वो ठीक है, 30%. तो लॉस अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा पहले. लॉस अमाउंट फॉर्मूला इज परसेंटेज ऑफ सीपी means 30% of CP means 30% of 12,000. You calculate it yourself, you will find the answer to be 3,600 rupees. Please pause the video and calculate yourself. You will find that the answer is 3,600 rupees. Therefore selling price is cost price minus loss या कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, जो बोलो वो, जैसा लैंग्वेज है क्वेश्चन में वैसा यूज करने का. डिस्काउंट वर्ड नहीं है तो कोई बात नहीं. लॉस तो सीपी माइनस लॉस, 12,000 में 3,600 कम करना पड़ेगा. एंड देयरफॉर यू विल हैव टू सेल एट 8,400 रुपीज सेलिंग प्राइस. So one more topic we have done which is not difficult. सारे के सारे सम सेम स्टाइल के हैं, बट क्वेश्चन के अंदर से इंफॉर्मेशन निकालने में हेल्प चाहिए. तो विदाउट फेल व्हाट्सएप मी द क्वेश्चंस फोटोग्राफ. थैंक यू सो मच. फाइनली बाय.